So hello everyone, welcome to Genic Education. So in the previous lecture we have completed the efficiency of the transformer. Okay, so you know efficiency and voltage regulation, these are called your performance indices of the transformer. So in this class we will be discussing the voltage regulation of the transformer. So write down the heading voltage regulation of the transformer. Voltage regulation. So first of all, tell me what is the meaning of voltage regulation. So regulation is a word and voltage is a word. So voltage is a quantity, and so regulation means it is the variation. It is the variation और regulation का actual meaning क्या होता है? It is the control. सो यहाँ पे किसका कंट्रोल होगा? वोल्टेज का, लेकिन ये कंट्रोल वाला चीज नहीं है. दिस इज द वेरिएशन ऑफ विच क्वांटिटी? वोल्टेज. सो हाउ वोल्टेज विल वेरी? टेल मी हाउ वोल्टेज विल वेरी एंड विच वोल्टेज इट विल वेरी. So already we know that in the transformer will supply the voltage, and in the secondary side induced some EMF will be induced, and that induced EMF will be supplied to the load. That in the secondary side will be connecting a load, so depending upon that load the voltage will vary. So there must be a doubt, sir, how voltage depends upon the load? This must be the doubt. So let me tell you one thing. Suppose this is a transformer. Here I will be connecting the load. Okay, so the supply voltage remains same. Don't think that voltage regulation means the supply voltage is changing, the supply voltage is fluctuating or varying. Sorry, don't think that supply voltage is varying. I am ignoring the supply voltage, the variation in supply voltage. I am just discussing, I am just focusing on the load voltage. I am just focusing on the fluctuation in the load voltage. Okay, so here in the secondary side load will be connected. Suppose the load voltage is V2 and the induced voltage here is E2 and the current here is I2. But don't think that this is an ideal transformer. So let me draw the equivalent circuit of the transformer, this practical transformer with respect to secondary. With respect to secondary क्या होगा ये? Okay, so this is R02, this one is X02, this is I2, and this is your load voltage V2. Okay, and this is nothing but your E2. This is nothing but your E2. So tell me this load, see now what will see, once the E2 depends upon the supply voltage and the supply voltage is fixed. Okay, this supply voltage is fixed. Now write the KVL equation inside the loop. So by KVL it will be E2 equal to I2R02 plus J I2X02 plus V2. The KVL equation is like this one. So tell me what will be the expression for V2? V2 will be E2 minus I2R02 minus J I2X02. Correct? So in this equation which quantity is fixed? E2 is a fixed quantity because our supply voltage is kept constant. Write down supply voltage kept constant. Correct? So E2 is a fixed quantity. R02, X02, these are the transformer parameters, series branch parameters, and it is
also a constant. It is also a constant. But which one is variable one? The load is variable. Already repeatedly I am telling you, the load, see, load means it depends upon the customer whether I want to switch on a particular load or switch off a particular load. That is my choice. That means that is the customer choice. We don't have control over that. So if load will vary, so which quantity? Load means what? Load current, I2. So I2 is variable. So the voltage, the terminal voltage of the load depends upon the which one? The load current. Okay. So if the load current will increase, if load current will increase, then what will be V2? V2 will decrease. But I cannot assure when I2 will increase, V2 will decrease. This is not at all, I cannot take this conclusion just because I don't know. See, this is not a mathematical, not a algebraic equation. This is a vector equation. Okay, just a minute. This is a vector equation, not an algebraic equation. अगर algebraic होता then ये condition valid होता, लेकिन ये वेक्टर इक्वेशन है. सो अगर I2 इंक्रीज करेगा, अगर I2 बढ़ेगा तो V2 कम होगा. आई कैनॉट एस्यूर. ओके, नाउ सो इन दिस केस द वोल्टेज, द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द लोड. लोड मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट, that is magnitude of current as well as the power factor. This depends upon the load, the load current and the power factor. So write down V2 is a function of I2 and power factor cos phi 2. 24 में रखो I2 and cos phi 2. Correct? So what is voltage regulation? It is the fluctuation in voltage. Which voltage? अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो E2 वेरी होगा? नहीं होगा. Which quantity will vary? Which voltage will vary? The load voltage will vary. So voltage regulation is the fluctuation of load voltage. Write down voltage regulation. It is the fluctuation in the load voltage it is the fluctuation in the load voltage. Okay, so what will be the fluctuation? VR will be, अगर फ्लक्चुएशन अगर हम लेंगे तो उसका एक रेफरेंस होगा. which one should be the reference? रेफरेंस जो भी चीज होता है वो एक नोन क्वांटिटी होना चाहिए. सो यहाँ पे नोन क्वांटिटी जो कि आपका ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में होगा और द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर से पता चल सकता है वो क्या होगा? दैट इज E2. दैट इज E2. ओके, सो वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय E2 minus V2 divided by E2. This is the expression for voltage regulation. So percentage of voltage regulation क्या होगा? Into 100%. Into 100%. So this will be the expression for voltage regulation. So what is voltage regulation? Tell me. Sorry. Voltage regulation is the fluctuation in voltage. Right? So now substitute the value of E2, substitute the value of E2 in that expression and tell me what will be the expression for voltage regulation. Then it will be percentage voltage regulation will be E2 minus V2, that is I2 R02 plus j I2 X02 divided by E2 into 100%. Okay, divided by 100%.
So let us derive the expression for voltage regulation. Let's derive the final expression for voltage regulation. Suppose I am considering the load voltage, that is V2, okay, and the reference angle is 0. So the load voltage here is V2. This is the reference. Suppose let's consider the lagging power factor. It is a lagging load. Suppose a lagging load is suppose an inductive load is connected. Okay, so definitely I2 क्या होगा? It will be lag behind the V2 by how much? It will lag behind V2 by how much? Phi 2. Okay. Now now from the KVL equation क्या होगा? V2 plus, in order to get the E2, V2 plus I2 R02 plus J I2 X02. तो हम क्या करेंगे? पहले I2 R02 को ऐड करेंगे. तो I2 R02 का फेज एंगल क्या होगा? It will again lag behind voltage by phi 2, क्योंकि I2 R02 इज ए कांस्टेंट. तो क्या होगा यहां पे? ओके, दिस वन इज योर I2 R02. नाउ वी हैव टू ऐड I2 X02. I2 X02 इज ए कांस्टेंट. I2 X02 इज ए कांस्टेंट. सो I2 X02 क्या होगा? I2 के फेस के बराबर होगा. करेक्ट है. लेकिन यहां पे J I2 X02, J का मीनिंग क्या है? वी नो दैट J इज इक्वल टू 1 एंगल 90 डिग्री. J is a phase shifting operator. J is a complex quantity. So इसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड फेज एंगल 90 डिग्री है. इसका मीनिंग I2 X02 को 90 डिग्री लीड करेगा. सो I2 X02 ये होने वाला था, लेकिन J I2 X02 क्या होगा? 90 डिग्री लीडिंग. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर J I2 X02. This will be your J I2 X02. This is your E2. Okay, so what will be the expression for this one? Tell me, क्या होगा? इसको हम अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या होगा? सपोज मान लो ये है आपका O, ये है आपका O, ये है B एंड ये है आपका D. ओके, and this one is your C. This one is your C, and this is your suppose A. Okay, so I have to find the magnitude of I2 R02 plus J I2 X02. इसको हमको फाइनली फाइंड करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? See, E2 minus V2. V2 is this much. V2 is this much. E2 is this much. Okay. So E2 minus V2. See, E2 को अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड, E2 अगर एक रेडियस है, नहीं, जस्ट मिनट, E2 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी डिफाइंड है. ठीक है, E2 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी डिफाइंड है एंड V2 का मैग्नीट्यूड भी ऑलरेडी डिफाइंड है. तो E2 माइनस V2 अगर करेंगे तो क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली E2 माइनस V2 अगर करेंगे तो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू BC.
that will be equal to BC. Okay, that will be equal to BC. इसको हम एक काम करते हैं, दिस इज योर D, दिस इज द C. सो व्हाट डू यू हैव टू डू, BC फाइंड करना है. BC इज नथिंग बट BD प्लस CD. सो ये क्या था आपका, phi2 था. ये अगर phi2 है, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये 90 माइनस phi2 होगा. ये अगर 90 माइनस phi2 है, ये अगेन phi2 होगा. ओके, ये अगर phi2 है, देन ये आपका 90 माइनस phi2 होगा. ओके, सो BD क्या हो जाएगा, BD विल बी I2 R02 cos phi2, क्योंकि वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप पढ़े होंगे, जो कि एडजेसेंट होता है उसका क्या होता है, कॉस होता है, एंड परपेंडिकुलर का क्या होता है, साइन होता है. सो BD इज हाउ मच, I2 R02 cos phi2. सिमिलरली यहां पे आपका CD का क्या होगा, CD विल बी हाउ मच, CD विल बी, बस मैग्नीट्यूड लेना है, आपको J कंसीडर नहीं करना है. सो ये अगर I2 X02 है, आपको फाइंड करना है CD, तो क्या करेंगे, I2 X02 cos 90 माइनस phi2, I2 X02 cos 90 माइनस phi2. सो ये क्या हो जाएगा, I2 X02 sin phi2. ठीक है, I2 X02 sin phi2. Okay, got the point? Now we got the value of BC, that is BD plus CD, and BD is how much, this one, CD is how much, this one. Now E2 minus V2, see, now percentage voltage regulation is equal to BC. BC क्या होगा, I2 R02 cos phi2 plus I2 X02 sin phi2 divided by E2 into 100%. Correct? But we have already studied the percentage resistance. So percentage resistance meaning the percentage voltage drop. Okay, that is percentage voltage drop. So that may be I1 R01 divided by E1 or I2 R02 divided by E2. But you have to prove me percentage resistance is constant in primary and secondary side. How? Listen to me. What is percentage resistance with respect to primary? That is I1 R01 divided by E1. So first of all, percentage resistance का meaning क्या होता है? That is the voltage drop. Okay, when we are considering with respect to the primary, so primary अगर consider करेंगे तो net voltage drop क्या होगा, total resistance क्या होगा with respect to primary, R01. So it will be I1 R01 by E1, absolute value by base value. तो base voltage हम क्या लेंगे, the rated voltage in the primary side. तो I1 R01 by E1 into 100. This is the percentage resistance with respect to primary. Similarly, percentage resistance with respect to secondary क्या होगा, the voltage drop with respect to secondary. तो voltage drop with respect to secondary अगर करेंगे तो resistance क्या होता है, R02 होता है. तो voltage drop क्या होगा, I2 R02 and voltage is how much, E2 into 100. So you have to prove ये दोनों same है, meaning percentage resistance is constant when it is with respect to primary and with respect to secondary. How? You have to prove it. Okay, got the point? Now I2 R02 by E2 is how much? Tell me. This is nothing but your percentage R cos phi2,
and I2 x0 to y2 is how much? Percentage x sin phi 2. Percentage x sin phi 2. This is the conclusion. So voltage regulation is given by percentage r cos phi 2 plus percentage x sin phi 2. Okay. This is the final conclusion. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? Any doubt? How we proceed to find the solution? Okay. Now this is for lagging condition. हमें फर्स्ट केस में क्या लिए थे? दिस इज एन इंडक्टिव लोड. बट नेक्स्ट केस इज सपोज द लोड इज कैपेसिटिव. Suppose the load is capacitive or we are having a leading power factor load. We are having a leading power factor load. Then what will be the condition? Then what will be the formula for voltage regulation? Tell me. Then what will be the formula for voltage regulation? माइनर चेंजेस होगा, कुछ नहीं है, सेम चीज आएगा, बस एक छोटा सा माइनर चेंजेस आएगा. यू हैव टू प्रूव इट बाय योर फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन में. सो नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है देन फेजर डायग्राम बहुत इजी होगा. एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज ऑल अबाउट योर फेजर डायग्राम. इट्स ऑल अबाउट योर फेजर डायग्राम. सो for leading load, voltage regulation is equal to percentage R cos phi 2 minus percentage X sin phi 2. Okay. So in general I can write here percentage voltage regulation is equal to percentage R cos phi 2 percentage X sin phi 2. So plus is for lagging power factor, minus is for leading power factor. Okay, plus is for lagging power factor, minus is for leading power factor. Okay, this is the final in general expression of voltage regulation. And this formula is applicable when operating at my doubt is whether this formula is applicable everywhere. Suppose the rating of the transformer is 230 by 11 kV and I applied a voltage of 200 volt. Then in this case whether this formula is applicable or not, please comment in the comment section. Please reply in the comment section, applicable or not. My question is that I am having a 230 volt 11 kV transformer, single phase ही होगा 230 by 11 kV मतलब, but my supply voltage is 200 volt. Okay, so my question is that whether this formula is applicable or not. You have to write in the comment section, and if not, why. अगर नहीं है, अगर applicable नहीं है, why. अगर applicable है, why. रीजनिंग भी देना है. रीजनिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट. सी कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आंसर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर प्रिपरेशन के टाइम कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो आपका आंसर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वहां पे क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपके पास रीजनिंग है कि नहीं, आपके पास लॉजिक है कि नहीं, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के टाइम.
एंड एग्जाम के टाइम, एग्जाम आप अगर दे रहे हैं तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन रीजनिंग भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट विल डिस्कस द conditions for maximum voltage regulation, conditions for minimum voltage regulation. So before that voltage regulation हम पढ़ लिए, ओके। हम conditions discuss करेंगे for maximum and minimum, but let me ask you some question here. बंद कर दो। Okay, so tell me whether I need a poor voltage regulation or more voltage regulation. Which one is preferred? Less voltage regulation or more voltage regulation? Which one is preferred? As a designer, as a manufacturer, okay, as a manufacturer, I need a voltage regulation should be less or more. Which one is required? Which one is required? Tell me. You have to answer this question, okay. This is the first question. Second, what is the see less and more and poor and better, poor better, पुअर और बेटर, ये दोनों के बीच डिफरेंस है। लेस वोल्टेज रेगुलेशन एंड पुअर वोल्टेज रेगुलेशन सेम नहीं है। लेस वोल्टेज रेगुलेशन, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ये दोनों सेम है। पुअर मतलब कम, पुअर मतलब क्या है, जिसके पास कम पैसा है, एंड रिच मतलब क्या है, जिसके पास ज्यादा पैसा है। बेटर मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, इसका मीनिंग क्या है, बेटर है, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज लेस वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन पुअर है, इसका मीनिंग क्या है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। सो वोल्टेज रेगुलेशन इज मोर, ओके। सो ये दोनों का मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। लेस बेटर, पुअर मोर। लेस मतलब पुअर नहीं है, मनी लेस है मतलब पुअर है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन लेस है, इसका मीनिंग ये बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हुआ ना, क्योंकि मुझे तो कम फ्लक्चुएशन चाहिए, ठीक है, मुझे कम फ्लक्चुएशन चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन गया, ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। थर्ड वन इज what is the consequence, consequence मतलब क्या है, रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा। consequence मतलब परिणाम ना। what is the consequence of poor voltage regulation, okay. So these are the question you have to answer. ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आपको आंसर करना है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन।
Okay, any doubt in this concept, please ask me. Otherwise, we'll proceed to the next section. That is the condition for maximum voltage regulation and condition for zero regulation. Write down. Conditions for मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. सो कंडीशन का मीनिंग क्या है आप बताओ. कंडीशन का मीनिंग क्या है. कंडीशन का मीनिंग क्या है. एट व्हाट कंडीशन. एट व्हाट. सो यहां पे एट व्हाट मतलब क्या है. व्हाट मतलब क्या है यहां पे. एट व्हाट पावर फैक्टर. एट व्हाट पावर फैक्टर. एट व्हाट मतलब एट व्हाट पावर फैक्टर. At what matlab what power factor. Okay, so we know that the the expression for voltage regulation is equal to percentage cos r cos phi 2 plus or minus percentage x sin phi 2. तो ये एक नॉर्मल चीज है, दोनों क्वांटिटी ऐड होगा तब जाके मैक्सिमम होगा ना. ओके, या सब्ट्रैक्ट होगा तब जाके मैक्सिमम होगा. मेरे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है. दोनों क्वांटिटी को अगर ऐड करेंगे तब जाके मैक्सिमम होगा, या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके मैक्सिमम होगा. ऑब्वियसली अगर हम ऐड करेंगे तब जाके मैक्सिमम होगा. सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल कब है. फॉर लैगिंग पावर फैक्टर. फॉर लैगिंग पावर फैक्टर. नाउ you can see here your voltage regulation is a factor of. Voltage regulation is a function of, not factor, function of power factor. It is a function of power factor. So at what condition means at what power factor. तो कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे. उसका डेरिवेटिव लेंगे. सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा. परसेंटेज आर माइनस साइन फाई 2 प्लस परसेंटेज एक्स कॉस फाई 2. सो डेरिवेटिव अगर जीरो होगा देन वी कैन फाइंड. डेरिवेटिव को हम जीरो करेंगे एंड वहां पे हम कंडीशन फाइंड करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होगा. देन इट विल बी tan phi 2. डायरेक्टली आई एम राइटिंग है, आप लोग उसको थोड़ा एडजस्ट करना. परसेंटेज एक्स बाय परसेंटेज आर. सो फाई 2 क्या हो जाएगा आपका. tan इनवर्स परसेंटेज एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज आर. Okay, tan inverse percentage x divided by percentage r. This is the condition. Okay, so at lagging power factor the voltage regulation will be maximum. Now let's proceed to the condition for zero voltage regulation. कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. सो दोनों क्वांटिटी अगर ऐड होंगे कभी पॉसिबल है ये जीरो होना. नहीं है. तो कब पॉसिबल है, जब सब्ट्रैक्ट होंगे. तो सब्ट्रैक्ट होंगे मतलब परसेंटेज आर कॉस फाई 2 माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई 2 इज इक्वल टू जीरो. देन आई कैन राइट हियर tan फाई 2 इज इक्वल टू परसेंटेज आर डिवाइडेड बाय परसेंटेज एक्स. So phi 2 is equal to percentage r, नहीं, just a minute, tan inverse percentage r divided by percentage x. But my question is that out of this phi 2, this two power factor, which one will be more and which one will be less. Let's see what is your thinking level. आप कैसे सोचते हैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट को एंड कंसेप्ट को. लेट्स सी. यहाँ पे दोनों फाई 2 है. बोथ आर द पावर फैक्टर एंगल. पावर फैक्टर एंगल हो या पावर फैक्टर हो उसके हिसाब से तो वेरी होगा ना, बिकॉज पावर फैक्टर इज ए कोसाइन ऑफ पावर फैक्टर एंगल. करेक्ट. तो देखते हैं यहाँ पे आप बताओ फाई 2 ज्यादा होगा, ये वाला फाई 2 ज्यादा होगा या ये वाला फाई 2 ज्यादा होगा. दिस फाई 2 इज फॉर
दिस phi 2 is for maximum voltage regulation, this phi 2 is for zero voltage regulation. ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल, दोनों पावर फैक्टर है यहां पे फॉर डिफरेंट कंडीशन. सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हिच पावर फैक्टर विल बी मोर, दिस वन और नहीं, व्हिच पावर फैक्टर एंगल विल बी मोर, दिस वन और दिस वन, टेल मी, this one or this one? This question suddenly stuck to my mind, that's why I asked you. Okay, so let's see how to proceed. नहीं, हम इसको क्वेश्चन फिर से नहीं पूछेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं आज. सो यहां पे ही आपको आंसर करना है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, उसको आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगा ना. ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आप, लेकिन क्लैरिटी नहीं आएगा कभी भी. एंड यूएससी एग्जाम में सब चीज आपका चेक किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरव्यू. ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है. आपका सब कुछ 360 डिग्री, आपका हर कुछ स्किल चेक किया जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सी. सो ऑब्वियसली कोई भी मशीन्स में रेसिस्टेंस हमेशा कम होता है रिएक्टेंस के हिसाब से, बट देयर इज ए एक्सेप्शन इन ट्रांसफार्मर. एक्सेप्शन है ट्रांसफार्मर का एक चीज में. ठीक है, कहाँ पे आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज्ड है, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा है एंड इंडक्टेंस कम है. कहाँ पे ट्रांसफार्मर का, कहाँ पे कौन सा रेसिस्टेंस और कौन सा रिएक्टेंस, वो चीज आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इतना क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि आप कितना दे पा रहे हैं आंसर, वो देखते हैं. लेट्स सी. सो अभी क्या है, परसेंटेज एक्स इज मोर देन परसेंटेज आर. सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज आर विल बी मोर देन 1. सो मोर देन अगर 1 होगा, phi 2 विल बी, tan 45 इज 1 ना. ठीक है, phi 2 विल बी डेफिनेटली मोर देन 45 डिग्री. करेक्ट. सिमिलरली परसेंटेज आर बाय एक्स क्या होगा, परसेंटेज आर बाय एक्स इज लेस देन 1, क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर ज्यादा है. तो यहां पे phi 2 क्या होगा, विल बी लेस देन 45 डिग्री. तो व्हाट इज द कंक्लूजन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लेस पावर फैक्टर में होगा. ओके, मैक्सिमम सी, ये वाला अगर ज्यादा है तो cos phi 2 क्या होगा, कम होगा. एंड ये phi 2 अगर कम है तो cos phi 2 क्या होगा, ज्यादा होगा. इसका मीनिंग जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हाई पावर फैक्टर में पॉसिबल है एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लो पावर फैक्टर में पॉसिबल है. ये कंक्लूजन है. ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं ना, टाइम वेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली नॉट. ये सब चीज हम वोल्टेज रेगुलेशन कर्व पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, विल ड्रॉ द वोल्टेज, ब्यूटीफुल वोल्टेज रेगुलेशन कर्व. होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. अच्छा, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अरे वो सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ओके, सो वी नो दैट इट इज गिवन बाय परसेंटेज आर cos phi 2 प्लस परसेंटेज एक्स साइन phi 2. ओके, परसेंटेज एक्स साइन phi 2. सो आप बताओ
ये है आपका R02, ये है आपका X02 एंड ये है आपका क्या है phi2 ना, phi2। सो cos phi2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी R02 बाय ये क्या होगा Z02 ना, Z02। सिमिलरली sin phi2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर X02 बाय Z02, X02 बाय Z02। सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज R। सो R02 को हम परसेंटेज R लिख सकते हैं, इसको हम परसेंटेज Z लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको हम परसेंटेज X लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, ये मैथमेटिकली आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सो परसेंटेज R इंटू cos phi2 मतलब परसेंटेज R इन बाय परसेंटेज Z, परसेंटेज R डिवाइडेड बाय परसेंटेज Z प्लस परसेंटेज X इंटू साइन phi2 मतलब परसेंटेज X डिवाइडेड बाय परसेंटेज Z, ओके, परसेंटेज X डिवाइडेड बाय परसेंटेज Z। सो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज R होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय परसेंटेज Z प्लस परसेंटेज X होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय परसेंटेज Z। सो परसेंटेज R होल स्क्वायर प्लस परसेंटेज R X स्क्वायर ये क्या होता है, अब बताओ, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परसेंटेज Z ही होगा ना। सो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज Z होल स्क्वायर। सपोज ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ओके। सो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा परसेंटेज Z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय परसेंटेज Z। जस्ट अ मिनट, ओके। सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा आपका परसेंटेज Z। रिमेंबर वन थिंग, परसेंटेज Z क्या होता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। टेल मी व्हाट इज परसेंटेज Z? इट इज द परसेंटेज इंपेडेंस, इट इज द परसेंटेज इंपेडेंस। सो परसेंटेज Z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट, ओके, VSC बाय E1। सो ये क्या होता है 5 to 8%, दिस रेंजेस फ्रॉम 5 to 8%। सो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर ऑफर्स ए बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, लेस वोल्टेज रेगुलेशन और बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। दिस इज द कंक्लूजन, ट्रांसफार्मर ऑफर्स बेटर वोल्टेज रेगुलेशन और लेस वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या है 5 to 8% में है एंड दैट टू वेरी लो पावर फैक्टर। अब बताओ लो पावर फैक्टर अगर है, इज इट अलाउड, इज इट लीगली अलाउड, is it legally allowed to operate a low power factor load? No. 0.85 some certain marks will be there, 0.85 or 0.9, उसका लेस अगर होगा you have to give the penalty, क्योंकि आप रिएक्टिव पावर कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। रिएक्टिव पावर अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, द एपरेंट पावर सेंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी मोर और द सप्लाई सिस्टम विल बी मोर। लेकिन आप हमेशा रियल पावर के लिए ही आप पेमेंट करते हैं, ओके, आप बिल देते हैं किसके लिए, रियल पावर के लिए, रिएक्टिव पावर के लिए नहीं देते हैं। अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको रिएक्टिव पावर के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। एक्चुअली क्या होता है, रिएक्टिव पावर के लिए हम पैसा नहीं देते हैं। इनफैक्ट रिएक्टिव पावर से मान लो एक इंडस्ट्रियल लोड है, ठीक है, उसका पावर फैक्टर है 0.5 लैगिंग, इसका पावर फैक्टर मान लो 0.5 लैगिंग। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिएक्टिव 0.5 लैगिंग मतलब रिएक्टिव पावर कंजम्पशन इज वेरी हाई, रिएक्टिव पावर कंजम्पशन इज वेरी हाई। सो आपका बेंचमार्क है 0.9, 0.9 से नीचे अगर आप पावर फैक्टर आपका ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पेनल्टी नहीं देते हैं नॉर्मली, ओके, क्या करते हैं हम रिएक्टिव पावर को कंपेंसेशन करते हैं,
ओके, दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप इसको बहुत सारी जगह में पढ़े होंगे, नेटवर्क में भी पढ़े होंगे, मशीन में भी पढ़ेंगे, पावर सिस्टम में भी पढ़ेंगे। रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन करेंगे। रिएक्टिव पावर हमेशा वोल्टेज हमेशा रिएक्टिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिएक्टिव पावर कंजम्पशन हाई है देन वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, डीप हो जाएगा, इट विल बी डीप। सो वोल्टेज, हाँ अगेन वोल्टेज अगर डीप हो गया देन कांस्टेंट पावर लोड है तो कंज्यूम करेगा ज्यादा करंट, ज्यादा करंट कंज्यूम होगा, तो ज्यादा करंट कंज्यूम होगा, इसका मीनिंग मे बी ओवर हीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को कंपेंसेशन करते हैं ताकि वोल्टेज आपका स्टेबल रीजन में रहे। इन पावर फैक्टर यू माइट बी स्टडिंग पीएफ कर्व, क्यूवी कर्व। रियल पावर फ्रीक्वेंसी को ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टिव पावर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और हाँ ये दोनों ऐसे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब लोड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज सेपरेट थिंग। हम बहुत सारी चीज कोरिलेट कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, मे बी इन पावर सिस्टम और इन द सिंक्रोनस मशीन विल डिस्कस। सिंक्रोनस मशीन, सी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का बेस क्या है, सिंक्रोनस मशीन। सो सिंक्रोनस मशीन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो सिंक्रोनस मशीन का स्टेबिलिटी स्टडी जो पावर सिस्टम में करते हैं, दैट इज जस्ट सिंपली इलेक्ट्रिकल मशीन ओनली, लेकिन वहां पे नेटवर्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि हम नेटवर्क अगर ऐड कर दिए वहां पे तो दैट बिकम्स नॉट ओनली पावर सिस्टम, नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल, सी जेनरेटर के साथ अगर लोड कर दिए, ट्रांसमिशन लाइन ऐड कर दिए, दैट बिकम्स ए नेटवर्क, दैट बिकम्स ए पावर सिस्टम नेटवर्क। सो इसको हम सेपरेट करके ले गए कहां पे, पावर सिस्टम पे, एंड सेपरेटली हम स्टेबिलिटी एनालिसिस स्टडी करते हैं। ओके, बट दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज ए वेरी रिगरस टॉपिक। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, that is also called power system dynamics। power system dynamics भी बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नाउ लेट्स डिस्कस द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व। सो जीरो वोल्टेज, सी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज जेड। डोंट से कि सर आप तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फाइंड नहीं किए। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो क्यों फाइंड करेंगे फिर? करेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी द रेगुलेशन कर्व। बहुत ही सिंपल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। हम जो डिस्कस किए हैं इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। रेगुलेशन, CURV, ठीक है। Okay, so this one is the regulation curve. So zero voltage regulation, see this is the power factor axis। ये आपका है यूनिटी, ये आपका जीरो पावर फैक्टर, ये आपका क्या होगा, जीरो पावर फैक्टर। सो ये है आपका, सी एट यूनिटी पावर फैक्टर, सी दिस इज योर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे होना था, लैगिंग साइड में होना था, लैगिंग साइड में होना था। ओके, एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग साइड में होना था। लेकिन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे होगा, हाईली कैपेसिटिव लोड में होगा।
एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे होगा, नहीं, लाइट कैपेसिटिव लोड, लाइट कैपेसिटिव लोड, एंड यहां पे हाई कैपेसिटिव लोड में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ठीक है, दिस इज द रेगुलेशन कर्व, करेक्ट। नाउ voltage regulation, percentage voltage regulation at x fraction of full load will be equal to x into percentage voltage regulation. Simply x multiply करना है। This formula is for rated condition, rated current, जब rated load, जब the current in the winding is rated one, लेकिन हमेशा तो रेटेड कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन को, सी यहां पे एक टर्म इन्वॉल्व है, यहां पे एक टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज I2 R02। सो XI2 हो जाएगा, XI2 हो जाएगा। सो X सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, X इंटू वोल्टेज रेगुलेशन एट रेटेड कंडीशन। ओके, सो ऑब्वियसली X का वैल्यू 0 to 1 में लाइज करता है। सो वोल्टेज रेगुलेशन अदर देन रेटेड कंडीशन क्या होगा, हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द वोल्टेज रेगुलेशन एट रेटेड लोड। ओके, रेटेड कंडीशन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस ए सिंपल क्वेश्चन। एक मिनट, 2 मिनट दे दो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए होमवर्क क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर। A transformer has percentage R equal to 2%, percentage S X equal to 4%. Find percentage voltage regulation at 0.8 lagging and 0.8 leading respectively, okay, this is your homework question, please try to solve it. Okay, so thank you all of you for watching this video, God bless you.